Current Affairs. Important Questions Daily Affairs. June 28, 2025. Q1 NFHS 5 के अनुसार भारत में 10 से 75 वर्ष की आयु के कितने प्रतिशत लोग शराब का सेवन करते हैं? According to NFHS 5, what percentage of Indians aged 10 to 75 consume alcohol? 10.6%. B. 14.6%. C. 16.6%. D 24.6%. बटा आंसर B 14.6%. स्पष्टीकरण बटा एक्सप्लेनेशन राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 14.6% भारतीय इस आयु समूह में नियमित रूप से शराब का सेवन करते हैं. According to NFHS 5, 14.6% of Indians aged 10 to 75 regularly consume alcohol. Q2 हाल ही में भारत सरकार ने किशोरियों को कौशल प्रदान करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? Recently, the government of India has launched which initiative to provide skills to adolescent girls? Navya. B. Pratishta. C. Shakti. D. None of these. Answer Navya. Explanation नव्या पहल विकसित भारत @2047 के तहत किशोरियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है. Navya has been launched under Viksit Bharat at 2047 to impart skill training to adolescent girls. Q3. हाल ही में किस संस्थान ने SC/ST छात्रों के लिए पहली बार PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? Which institute recently launched the first ever PhD admission drive for SC/ST students? A.IIT Mumbai. B.IIT Delhi. C.IIT Guwahati. Des points IT Campur. उत्तर IIT दिल्ली बटा एक्सप्लेनेशन यह पहल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को उच्च शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए की गई है. This initiative promotes inclusive higher education opportunities for SC/ST students. Q4. वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? In the Global Peace Index 2025, what is India's global ranking? A 95वां, B 100वां, C 110वां बटा, D 115वां बटा. उत्तर 115वां. एक्सप्लेनेशन भारत की यह रैंकिंग आंतरिक संघर्षों, सीमा विवादों और सामाजिक चुनौतियों पर आधारित है. India's rank reflects internal conflicts, border tensions, and societal challenges. 5 हाल ही में आयोजित अंबुबाची मेला किस राज्य में हुआ है? Recently, in which state was the Ambubachi Mela organized? Assam Jharkhand से गोवा दे बिहार. उत्तर असम. एक्सप्लेनेशन यह मेला असम के कामाख्या मंदिर में होता है, जो मां शक्ति की पूजा से जुड़ा है. The fair is held at Kamakhya Temple in Assam and celebrates feminine divine power. 6 संविधान हत्या दिवस 25 जून 2025 को दिल्ली सरकार के सहयोग से किस मंत्रालय ने मनाया? Which ministry observed Sambidan Hatcha Diwas on June 25, 2025 with the support of Delhi government? A Ministry of Home Affairs. B. Ministry of Defense. C. Ministry of Culture. D. Ministry of Finance. Uttar Ministry of Culture. Explanation आपातकाल की वर्षगांठ पर संविधान की रक्षा के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया. The event marked the emergency anniversary to highlight the importance of constitutional protection. 7 क्रिस्टी कोवेंट्री, जिन्हें हाल ही में IOC की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किस महाद्वीप से है? Christy Coventry, recently appointed the first woman president of the IOC, belongs to which continent? Asia. B. Europe. C. Africa. D. Australia. उत्तर अफ्रीका. एक्सप्लेनेशन क्रिस्टी कोवेंट्री जिम्बाब्वे से है और ओलंपिक पदक विजेता रही है. She is from Zimbabwe, Africa and is an Olympic medalist. 8 हाल ही में ईरान ने ऑपरेशन बशायर अल-फतह के अंतर्गत किस देश में अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया? Recently, under Operation Bashar al-Fatah, Iran attacked a U.S. airbase in which country? A. Saudi Arabia. B. Qatar. C. Iraq. D. UAE. Answer Qatar. एक्सप्लेनेशन ईरान ने कतर में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया,
जो एक रणनीतिक कदम था। Iran targeted a U.S. airbase in Qatar as part of a strategic move. 9 हाल ही में भारत ने SDR 2025 रिपोर्ट में 167 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? Recently, in the SDR 2025 report, what is India's rank among 167 countries? A 89वां B 90वां C 95वीं D 99वां। उत्तर 99वां एक्सप्लेनेशन। यह रैंकिंग भारत की सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति को दर्शाती है। The rank shows India's progress towards sustainable development goal. 10 भारत का पहला ऑफ-ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट किस राज्य में शुरू हुआ है? India's first off-grid 5 megawatts green hydrogen pilot plant was started in which state? A कर्नाटक B राजस्थान C. Kerala. D गुजरात आंसर गुजरात। एक्सप्लेनेशन। यह पायलट प्लांट गुजरात के कच्छ जिले में स्थापित हुआ है। The pilot plant was established in Kutch, Gujarat as a green energy initiative. 11 किस देश के राष्ट्रपति ने 64 वर्षों में पहली बार असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? The president of which country appointed the first civilian defense minister in 64 years? ईरान B. South Korea. C. USA. D कनाडा आंसर दक्षिण कोरिया। एक्सप्लेनेशन। यह कदम सैन्य मामलों में नागरिक नियंत्रण को बढ़ावा देने हेतु उठाया गया है। The move aims to strengthen civilian oversight of military matters. 12 किस देश ने भारत के लिए लेवल 2 यात्रा परामर्श जारी किया है? Which country has issued a level 2 travel advisory for India? America. B. France. C. UK. D. China. आंसर अमेरिका। एक्सप्लेनेशन। अमेरिका ने सुरक्षा और स्वास्थ्य कारणों से यह सलाह जारी की है। The advisory was issued by the U.S. due to safety and health concerns. 13 केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय किस वर्ष पहली बार राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण करेगा? In which year will the Central Statistics Ministry conduct the first ever National Household Income Survey? 2026. B. 2027. C. 2028. Cercle noir moyen dès 2029. Answer in 2026. एक्सप्लेनेशन। यह सर्वेक्षण देश की औसत घरेलू आय का आधिकारिक आंकड़ा देगा। This survey will offer the first official estimate of average household income in India. Q14. शंघाई सहयोग संगठन (ASEAN) की बैठक हाल ही में किस देश में हुई जिसमें राजनाथ सिंह ने भाग लिया? The recent SCO meeting attended by Rajnath Singh was held in which country? Kazakhstan. B पाकिस्तान C. China. D बांग्लादेश Answer China. एक्सप्लेनेशन। भारत ने इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में भाग लिया। India participated under the leadership of Defense Minister Rajnath Singh. 15 नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking is observed on which date? A 25 जून B. June 26th. C. June 27th. D. June 28th. आंसर 26 जून। एक्सप्लेनेशन। इस दिन को मादक पदार्थों के दुरुपयोग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। It is observed to raise awareness about drug abuse and its ill effects. 25 जून को हर साल विश्व विटिलिगो दिवस मनाया जाता है। विटिलिगो दिवस की शुरुआत 2011 से हुई थी। यह दिन मशहूर पॉप स्टार माइकल जैक्सन के जन्म की याद में मनाया जाता है। उन्होंने विटिलिगो से अपने संघर्ष के बारे में खुलकर चर्चा की और लोगों को इस पुरानी त्वचा विकार के बारे में जागरूक करने के लिए कई अलग-अलग पहल की। 16 हाल ही में एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में हुआ? Recently, in which country was the Asian Para Badminton Championship held? India. B. Japan. C. China. D. थाईलैंड Answer Thailand. एक्सप्लेनेशन। यह आयोजन पैरा एथलीट्स के लिए खेलों में समावेशन की बढ़ावा देता है। The championship promoted sports inclusivity for para-athletes. 17 हाल ही में किसे तीनों सेनाओं के लिए संयुक्त आदेश देने का अधिकार प्राप्त हुआ है? Recently, who has been empowered to issue joint orders for all three armed forces? A Chief of Defense Staff.
B. Secretary of Military Affairs. C. Both. D. None of these. Answer both. Explanation: यह निर्णय त्रिसेना एकीकरण और संयुक्तता को बढ़ाने हेतु लिया गया है. This is aimed at enhancing tri-services integration and joint operations. 18. भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली को किस शहर मिशन में लॉन्च किया जाएगा? India's first quantum computing valley will be launched in which city? A. Mumbai. B. Amravati. C. Hyderabad. des Chandigarh. Answer Amravati. भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया. उत्तराखंड ने भारत की पहली योग नीति शुरू की. हिमाचल प्रदेश सरकार प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील की बोतलें देगी. सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला दीव बना है. भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच अभ्यास टाइगर क्लॉ संपन्न हुआ. भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की. डॉ. एस. मुक्कमाला को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया. ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 फीट में आइसलैंड शीर्ष पर रहा. महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया. जाम कश्मीर में त्राल वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया. भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष बना. भारत नॉर्वे के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा. सुहल में आयोजित 2025 आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा. भारत ने दुनिया की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BFS लॉन्च की. भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है. भारत 2025 से 26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बना. मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में 0.9% का योगदान रहा. भारत ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए सागर में सम्मान पहल शुरू की. 19 हाल ही में किस राज्य सरकार ने शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी है? Which state government has recently approved the Shaktipith Expressway project? Uttar Pradesh. B. Haryana. C. Maharashtra. D. Odisha. Answer Uttar Pradesh. 20 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के 5वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? In which state will the 5th edition of Khelo India University be organized? Arunachal Pradesh. B. Telangana. C. Rajasthan. D. Mizoram. Answer Rajasthan. 21 विश्व विटिलिगो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? World Vitiligo Day is observed on which of the following days? 24 जून. B. 25 जून. C. 26 जून. D. 27 जून. आंसर 25 जून. 22 माह से बच्चे तक HIV संचरण को समाप्त करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की गोल्ड टियर स्थिति प्राप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया है? Which country has become the first African country to achieve World Health Organization WHO gold tier status for eliminating mother-to-child transmission of HIV? A. बोत्सवाना. B. केन्या. C. नाइजीरिया. D. सूडान. Answer Botswana. 23 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने किस वर्ष से 10वीं की बोर्ड परीक्षा को वर्ष में 2 बार करवाने की घोषणा की गई है? From which year, the Central Board of Secondary Education, CBSE, has announced to conduct the 10th board examination twice a year? A. 2025. B. 2026. C. 2027. D. 2028. Answer 2026. 24 हाल ही में अंबुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ है? A. गोवा. B. केरल. C. त्रिपुरा. D. असम. आंसर असम. 25 हाल ही में वार्षिक कटारगामा एसाला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? A. नेपाल. B. भूटान. C. श्रीलंका. D. इनमें से कोई नहीं. आंसर श्रीलंका. यह त्योहार विभिन्न धर्मों में मनाया जाता है और भारत और श्रीलंका के बीच गहरे संबंधों के लिए जाना जाता है. 26 हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सबमरीन सहयोग के लिए समझौता किया है? A. रूस. B.
ऑस्ट्रेलिया। सी दक्षिण अफ्रीका। डी इनमें से कोई नहीं। आंसर दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में जोहानेसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हुई 9वीं संयुक्त रक्षा समिति (आईडीसी) बैठक में भारत और दक्षिण अफ्रीका ने पनडुब्बी सहयोग को लेकर दी महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों का उद्देश्य पनडुब्बियों के रखरखाव, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी साझा करने जैसे पहलुओं में सहयोग को बढ़ाना है। गोवा की फेनी को G1 टैग मिला। आंध्र प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थल्लिकी वंदनम योजना शुरू की गई। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीती। माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एनवीडिया बनी। प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश वेनेजुएला है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी M16 ने पहली महिला प्रमुख ब्लेज मेट्रेवेली को नियुक्त किया। भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू हुआ। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कंगला रनौत को नियुक्त किया गया। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में IIT दिल्ली शीर्ष पर रहा। 27. हाल ही में किस देश में 2 नए चमगादड़ वायरस की पहचान की गई है? अ. रूस। बी. चीन। सी. जापान। डी इनमें से कोई नहीं। आंसर चीन। चीन के यूनान प्रांत में वैज्ञानिकों ने चमगादड़ों की किडनी में 2 नए हेनिपा वायरस की पहचान की है, जो इंसानों में जानलेवा निपाह और हेंद्रा वायरस जैसे लक्षण उत्पन्न कर सकते हैं। चीन ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांगहेंग नामक उपग्रह लॉन्च किया। 2025 पारा पावरलिफ्टिंग वर्ल्ड कप बीजिंग में हुआ है। चीन ने एस्टेरॉइड से नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानवेन 2 मिशन लॉन्च किया। 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की। 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्यबल वाला देश चीन बना है। चीन गैस द्राइद्रेट्स के अध्ययन के लिए समुद्र के नीचे अनुसंधान केंद्र बना रहा है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स (रीज) और मैग्नेट के निर्यात पर चीन ने रोक लगा दी। 28 हाल ही में जैव विविधता की चुनौतियों से निपटने के लिए ICCON 2025 की मेजबानी कौन करेगा? अ. ब्राजील। बी. भारत। सी. इंडोनेशिया। डी इनमें से कोई नहीं। भारत। भारत 25 से 27 जून 2025 तक देश का प्रमुख संरक्षण विज्ञान और नीति सम्मेलन इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस ICCON 2025 आयोजित करने जा रहा है। यह 3 दिवसीय आयोजन वन्यजीव संस्थान, देहरादून, वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (वी) में होगा, जिसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MPEFCC के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। इसको उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव करेंगे। 29 हाल ही में बांग्लादेश ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है? अ. 6 मार्च। बी. 9 जुलाई। सी. 8 अगस्त। डी इनमें से कोई नहीं। आंसर 8 अगस्त। बांग्लादेश ने यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के उपलक्ष्य में 8 अगस्त को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया। 5 अगस्त को जुलाई विद्रोह दिवस नाम दिया गया। 30 हाल ही में भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया है? अ. केरल। बी. कर्नाटक। सी. तमिलनाडु। डी इनमें से कोई नहीं। केरल। हाल ही में केरल के कन्नूर जिले में स्थित अरुलाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आधिकारिक रूप से अलाम बटरफ्लाई के रूप में किया गया। यह भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी है, जो तितली संरक्षण के क्षेत्र में एक अग्रणी कदम है। यह अभयारण्य पश्चिमी घाट में स्थित है, जो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। June 2025 Important Days 1 जून विश्व दुग्ध दिवस। 2 जून तेलंगाना स्थापना दिवस। 3 जून विश्व साइकिल दिवस। 4 जून आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। 6 जून विश्व कीट दिवस।
7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून विश्व महासागर दिवस। 9 जून विश्व प्रत्यायन दिवस। 10 जून राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस। 11 जून अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, रूस दिवस। 13 जून अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। जून 14 विश्व रक्तदाता दिवस। 15 जून वैश्विक पवन दिवस। 16 जून अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस। 17 जून विश्व मगरमच्छ दिवस। 18 जून ऑटिस्टिक प्राइड डे। 19 जून विश्व सिकल सेल दिवस। 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, थीम योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, विश्व संगीत दिवस। 22 जून विश्व वर्षीवन दिवस। 23 जून विश्व ओलंपिक दिवस, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। 24 जून कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 25 जून अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस।